جمعہ کے دن پرائے مسلمان پورا سপ্তাহ যদি মসজিদও গিয়া নামাজ পড়ে না, বাড়িতে পড়ে বা বিলকুল পড়ে না, تو وہ مسلمان بھی جمعہ کے دن مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعے کی نماز میں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں۔ 2 نمبر خطبہ لاسٹے کیا، ایک بڑے لاسٹے کیا قرآن کریم کی ایک آیت پاٹھ کیا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ তারপরে ফাযকুরুল্লাহ তাআলা ইয়াযকুরকুম ওয়াদউহু ইস্তাজিব লাকুম ওয়ালাযিকরুল্লাহি তাআলা আ'লা ওয়া আওলা ওয়া আ'আজ্জু ওয়া আজাল্লু ওয়া আতাম্মু ওয়া আহাম্মু ওয়া আ'যামু হাক্কা۔ খুতবা শেষ, নামাজ আরম্ভ হয়ে যাती है। میرے মুসলমান ভাইও, কোরআনে কারীমের ভিতরে 6666 আয়াত আছে, 6666। पूरा कुरान छोड़कर और जुम्मे के खुतबा में पराई मस्जिद में, खाली आपके गांव की मस्जिद ना है, दुनिया जो तो मस्जिदों जुम्मा की नमाज होती है, पराई मस्जिद में इमाम साहब इस आयत को खुतबा के अंतिम में लास्ट में जाकर पढ़ते हैं। और 1 मास 2 मास 1 বছর 2 বছর से नहीं, কিতাবের ভিতরে লিখা আছে कि যে জামানত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহি বাদশাহ আসলা, আজকে তাকি প্রায় 1345 বছর আগে, প্রায় 1350 বছর हो गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा में इस आयत को शामिल किया था और आदेश जारी किया, हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि इमाम लोग जुमे के खुतबा में इस आयत को पढ़ेंगे। और আমরার এই মজলিসের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ বহুত মুরব্বী আছেন, যার বয়স 70 বছর 80 বছর হয়ে গেছে, कम से कम 50-60 बच्चों से वो जुम्मे की नमाज पढ़ता है और मस्जिद में जाकर पढ़ता है। और एक बच्चरे 52 जुमा होता है। इतना दिन से जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है और प्रत्येक शुक्रवार खुतबे में इमाम साहब के मुख से हम और आप इस आयत को सुनते हैं, किंतु बड़ो अफसोसेर होता कोनो दिन हमारा दिलेर भितरे एक होता का आयो ना कि इमाम साहब से जाकर पूछें कि ओ इमाम साहब, कुरान में तो 30 पारा 114 सूरत 6666 आयत, पूरा कुरान को छोड़कर 6665 आयत को छोड़कर प्रत्येक शुक्रवार आप मात्र ওই একটা आयत की तलागी पाठ करो। हर शुक्रवार एक आयत को क्यों पढ़ता है? वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर। আমরা যে আগের মুসলমান 100 বছর 200 বছর আগের মুসলমান, তারা कुरान पाठ करता, वो कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़कर समझते थे और कुरानेर ऊपरे तारा अमल करता। जो आदमी कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ने के बाद बुझार चेष्टा करबो, कुरानेर ऊपरे अमल करार चेष्टा करबो, वो मुसलमान कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया पर वो हुकूमत करेगा। আমরা বড় বদনসিব, আমরা কোরআন পাঠ করি না। আর কোরআন যদি পাঠ করি তে রমজান মাস আইলে এক কোরআন খতম করতাম। दादा दादी नाना नानी होड़ होड़ी किसी का इंतकाल हो गया, मारा गया,
تو مدرسے کے مولانا صاحب کو کچھ اسٹوڈنٹ کو اپنے گھر میں بلائے گا، میز قرآن لے گا اور پڑھے گا۔ اللہ نے قرآن کو صرف مردہ کی کتاب بنایا تھا؟ قرآن تو زندہ لوگوں کی کتاب، ہمارا جیویتو، جو لوگ زندہ ہے جیویتو ہے، قرآن اس کی کتاب ہے۔ وہ پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآنের ভিতরে কি কথা بیان করা হয়েছে جب وہ پڑھ کر سمجھے گا تو مود کھانا چھوڑے گا، چوری کرنا چھوڑے گا، ڈکیتی کرنا چھوڑے گا، ظلم کرنا چھوڑے گا، ماں باپ پر اتیاچار کرنا چھوڑے گا، سیلے میں کو انسان بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے بہن بھائی کو میراث میں حق دے گا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، اور یدی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو امام صاحب جمعہ کے دن ایک آیت پاٹ کرتے ہیں، ماتر ایک آیت، پراج شکروار کو خطبہ کے لاسٹ میں یہ آیت پڑھتے ہیں۔ آج میں اسی آیت کا بہت شارٹ، بڑا مختصر حسابے میں اس آیت کا ترجمہ، معنی، میننگ بیان کر کے انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ আর যদি এই আয়াতের উপরে বিস্তারিত তফসিল سے ڈیٹیل سے اگر بیان کرنا چاہے تو علماء کرام جو لوگ مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ দারুল দেওবন্দের একজন উস্তাদ, হাদিসের উস্তাদ, আগে মুরাদাবাদ শাহীর উস্তাদ আসলা, এখন গত বছর থাকি দারুল দেওবন্দের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতি সলমান মনসুর পুরী দামত বরকাতুহু, উনি মাত্র ও আয়াতের তফসির একটা কিতাবে লিখছেন, আর প্রায় 700 পেজ হয়েছে। এক আয়াতের তফসির লিখছেন আর প্রায় 700 পেজের কিতাব হয়েছে। এই কিতাবের নাম হইল এক জামে কুরআনী ওয়াজ, মার্কেটও পাওয়া যায়। मेरे नौजुवक साथियों, ये जो कुरान की आयत है, इस आयत में अल्लाह ताला ने 6 बातें बयान किया। दावत और तबलीग में 6 बातें हैं, वो अलग है, और कुरान की इस आयत में भी अल्लाह ने 6টা কথা बयान করছে। আর 3টা কথার উপরে আমরা अमल করতাম, 3 बात पर अमल करना है और 3 बात से अपने आप को रोकना है। এই 3টা কাজ আমরা করতাম না। कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। ओ मानव जाति, ऐ इंसानों, अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह ऑर्डर करता है कि तुमरा इंसाफ करो, तुमरा ना इंसाफी करियो ना, तुमको इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, न्याय करना है, कभी भी ना इंसाफी मत करना, बेईमानी मत करना। एक जो बड़ो मुफस्सिर टाइम लिखसुन कि इंसाफे 3টা मतलब, इंसाफ करार 3টা मतलब। नंबर 1, हमरा इंसाफ करतम अल्लाहर लोग, अल्लाह के साथ इंसाफ करना है। अल्लाह के साथ इंसाफ करने का मतलब यह है कि वाज सुनने के लिए जो वाजिब और फर्ज और सुन्नत नहीं है, वाज सुनने के लिए 1 बजे रात तक हम लोग बैठे हैं, वाज सुन रहे हैं। जो काम जरूरी नहीं वो हम 1 बजे 2 बजे रात तक कर रहे हैं। और नमाज पढ़ना जरूरी है। यहां हम जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने लोगों ने ऐशा की नमाज पढ़ा और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा। जो अल्लाह का काम था, जरूरी काम था, वो काम तो हमने किया नहीं, और जो काम जरूरी नहीं था वो काम रात 1 बजे 2 बजे तक जाग जाग कर और वो काम कर रहे हैं। ये अल्लाह के साथ बेईमानी है, इंसाफ नहीं है। ওই রকম अल्लाह खालिक, मालिक, दाता, अल्लाह ही देने वाला, किंतु पता नहीं अब होता है या नहीं। কয়েক বছর আগে আমি নিজের চোখ দিয়া দেখছি যে আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট, आपका जो जिला है दरंग जिला, न जाने कहां से भांडो आता है,
بنگلہ دیش سے، لور آسام سے، اور گورو لے کر، بیل لے کر، اور مسلمان مرد عورت سیلے میں آگے پیچھے، اور اس کو پیسہ دے گا اور اس کو نہ جانے کیا کیا اس کا پوجا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کام اب آپ کے یہاں نہ ہوتا ہو، کنتو آج کے تک 4-5 بچوں آگے امی نیجے دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کے ساتھ بےایمانی ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی، نماز اللہ کے لیے، پوجا اللہ کے لیے۔ یہ سر اگر کسی کے سامنے جھکے گا، پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ پیر، فقیر، بھانڈو اور اس کے ساتھ گورو، اس کے سامنے سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، اس کو دان کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، انیائے ہے، اللہ پر ظلم ہے۔ بہت بات ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 1 اللہ کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ نمبر 2 আমরা নিজের উপরে ইনসাফ করতাম, আমরা নিজের শরীরের লোকে इंसाफ करता। अपने शरीर के साथ इंसाफ का मतलब यह है कि अल्लाह ने पैर दिया है, चलकर मस्जिद जाना है। अल्लाह ने कान दिया था कुरान की तिलावत सुनने के लिए, अजान की आवाज सुनने के लिए, वाज नसीहत सुनने के लिए। जब से ये जालिम आया, ये जो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, सबके हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल और एयरफोन लेता है और गाना कान में एयरफोन लगाता है और वो अपना काम भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है। अपने कान के साथ नाइंसाफी। अल्लाह ने चुप दिया था, आग दिया था, कुरान को देखोगे तो तुम्हारे चुप की रोशनी बेसी हो जाएगी, तुम्हारा कभी आंख खराब, चुप खराब नहीं होगा। हमने कुरान को बंद कर दिया और रात दिन मोबाइल में वीडियो और ना जाने गंदा गंदा फोटो देखकर हम अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं। ये अपने चुप के साथ बेईमानी है। अल्लाह ने ब्रेन दिया था, दिमाग दिया था कि हम लोगों का थिंकिंग पॉजिटिव होगा, हम चिंता करेंगे तो पॉजिटिव, किसी के खिलाफ नहीं सोचेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा, नेगेटिव चिंता नहीं करेगा। किंतु मुसलमानों की बीमारी हो गई है। पराय समाज के अंदर जो मुसलमान है, पराय मुसलमान की एक बीमारी हो गई है कि अमी 2 টাকা की रकम इनकम करता हूं, इसका चिंता नहीं है। हम कैसे कमाएगा, कहां से इनकम करेगा, इसका चिंता कम है। उमुक साहब, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कैसे उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, ये चिंता हम और आप ज्यादा करते हैं। हम आगे बढ़ेगा ये फिक्र नहीं है, वो आदमी कैसे पीछे आ जाएगा, उसका बिजनेस कैसे डाउन हो जाएगा, रात दिन हम ये चिंता करते हैं। ये अपने ब्रेन के साथ नाइंसाफी। नंबर 2। नंबर 3 इंसाफ करना है। दुनिया में जितना जीव जंतु है, जितना अल्लाह का मखलूक है, हत्ता के আপনার বাড়ির ভিতরে যদি মুরগ আসে তো उस মুরগ के साथ भी इंसाफ करना। বাড়ির ভিতরে যদি একটা মিকুরি আসে उसके साथ भी इंसाफ करना है। अपने घर में माँ बहन है, उसके साथ इंसाफ और न्याय, बीवी के साथ इंसाफ और न्याय। अल्लाह ने संतान दिया, सेले में दिया, उसके साथ इंसाफ करना है। सेले में के साथ इंसाफ का मतलब, मेरे नौजवान साथियों, जब से एक नई सरकार हमारे मुल्क में बनी है, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, उसके बाद से लेकर मुसलमानों समस्याটা বেশি হয়ে গেছে, মুসলমানের প্রবলেমটা বেশি হয়ে গেছে। এখন সবথেকে বড় প্রবলেম, সবথেকে বড় সমস্যা, প্রায় टाउन में प्रत्येकটা डिस्ट्रिक्ट की खबर आइतेছে कि इतना मुस्लिम में अपना धर्म छोड़कर और हिंदू धर्म में चली गई, क्रिश्चियन धर्म में चली गई, मुर्तद हो रहे हैं हमारे और आपके लड़के बच्चे। और कौन लड़का बच्चा? जो जाहिल है वो नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, काका पैसा के लालच में, सर्विस के लालच में
وہ اپنا دین اور دھرم چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کا دین اور دھرم چھوڑ کر، ماں باپ کو لات مار کر اور کسی غیر قوم کے بچے کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری سماج کو، پورے مسلم سماج کو اس مرتد ہونے کی بیماری سے بچائے، لیکن صرف دعا سے نہیں، صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ باپ حاجی صاحب ہے، باپ چلا لگاتا ہے، کنتو انار میں کی کاج کرتے سے کالج میں جاتی ہے، کس کے ساتھ فون پر بات کرتی ہے، کالج جاتی ہے، صحیح معنی میں وہ کالج جا رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے، باپ کو اس کا ٹینشن نہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ میں کالج سے آئی، اس نے عصر کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، ظہر کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، ماں باپ کو اپنے سلے میں کے نماز کی چنتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا چنتا نہیں ہے، ناپاک ہو گئی تھی، پیریڈ میں چل رہی تھی، اس کا پیریڈ ختم ہوا، پاکی کا غسل کیسے کرنا ہے، اس کا ٹینشن اور چنتا نہیں۔ ہمارا لڑکا لڑکی ڈاکٹر کیسے بنے گا، رات دن اس کی فکر، ہمارا لڑکا لڑکی انجینئر کیسے بنے گا، رات دن اس کا ٹینشن۔ میرے بھائیوں، اپنے سلے میں کو پڑھائیے، خوب پڑھائیے، خوب پڑھائیے، سکھا نہیں تو کچھ نہیں، کنتو اسکول کالج کے سکھا سے پہلے اپنے لڑکے کو، اپنے سلے کو، اپنے مے کو پکا سچا مسلمان بنائیے، پکا مسلمان بنائیے۔ اور آپ خبر رکھیے کہ آپ کا لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، آپ کی لڑکی کالج سے آ کر قرآن پاٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ یدی ہم نے یہ ٹینشن نہیں لیا، یدی ہم نے اس کی فکر اور اس کا چنتا نہیں کیا، آج اپنا بھوکے ٹکڑا کل وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، ہو سکتا ہے اپنا دین، اپنا دھرم چھوڑ کر چلی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ تو عدل کا یہ مطلب ہے، اللہ کا پہلا آدیش تم لوگ انصاف کرو۔ نمبر 2، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسانের مطلب হইল প্রত্যেকটা জিনিসকে সুন্দর বানানো, ہر ایک چیز کو سندر بنانا، جو کام کرو خوبصورت بنا کر، سندر بنا کر۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی آئے، ان کے ماتھا میں چول تھا، کنتو چول میں اس نے تیل نہیں لگایا، چول میں چیرونی کنگھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ بابا، تم نے جب ماتھا میں چول رکھا ہے تو اس کو سندر بنا کر رکھو۔ سندر بنانے کا مطلب ہنی سنگ کٹنگ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ سندر بنانے کا مطلب ایک بیماری چلی ہے، 5 سال کا لڑکا، 6 سال کا لڑکا، ابھی وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن بیچ میں بڑا بڑا بال، سائڈ میں چھوٹا چھوٹا بال۔ میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قاف زا عین، قزع اس کے معنی وہی ہے، کہیں پر چھوٹا بال چول، کہیں پر بڑا چول۔ یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ اگر چھوٹا سیلے اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کا گناہ ماں باپ کو ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز کو سندر بنا کر رکھنا۔ نماز پڑھو، بڑھیا سے نماز پڑھو۔ ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں، اور یدی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1 منٹ بھی بہت ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ، اللہ اکبر، بس خالی اللہ اکبر، اللہ اکبر کر رہے ہیں، نہ سورت پڑھیں گے، نہ فاتحہ پڑھیں گے، اسی طرح سے نماز پڑھیں گے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم ہر ٹائم میں یہ سمجھو، اپنے دل میں خیال رکھو کہ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تم کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج ہم کو اور آپ کو غسل کرنا ہے، قاد ہونا ہے۔ جب ہم اور آپ غسل کرنے جائیں تو یہ سوچیں، اپنے دل میں خیال رکھیں کہ اے اللہ، آج ہمارے سامنے میں پانی ہے، ہم نے ٹیوٹی کو، ٹیپ کو چالو کیا، پانی آ رہا ہے، 10 لیٹر، 20 لیٹر، 50 لیٹر سے پانی کر رہے ہیں، شیمپو لگا رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، اور نہ جانے شریر میں کیا کیا ہم یوز کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ایک دن ایسا بھی آئے گا
निश्चय एक दिन ऐसा आएगा, पानी सामने होगा, साबुन भी होगा, किंतु एक फूटा पानी हम अपने हाथ से अपने शरीर पर नहीं डाल सकते। हमको भी मरना है, इनको भी मरना है, आप लोगों को भी मरना है, सबको मरना है, ये दुनिया छोड़कर जाना है। और मरने के बाद सबको जहां जाना है वहीं के लिए आज आप लोगों ने जलसा किया। मुझको बतलाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने मिलकर कब्रिस्तान के लिए एक माटी लिया है ना, अच्छी बात है। पहले कोई मर जाता था उसके घर में कब्र बनाया जाता था, अब बिल्कुल राजुआ हिसाबे एकदम जनरल सबके लिए गांव समाज के लोगों ने मिलकर कब्रिस्तान के लिए माटी लिया। मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल हम सबको मर के जाना है, और सबको मर के जहां जाना है वहीं जाने की आप लोगों ने तैयारी के लिए आप लोगों ने माटी लिया और माशाअल्लाह राजुआ कब्रिस्तान बनाया। मैं दुआ करता हूं कि कब्रिस्तान की जमीन और माटी के लिए जितना पैसा का दरकार है अल्लाह ताला गैब से उसको पूरा कर दे। सब नौजुवक को अल्लाह ताला हिम्मत दे, उसके बिजनेस में बरकत दे, 1000 रुपया देने वाला 5000 10,000 देने वाला बन जाए और अल्लाह ताला माटी का जो मसला है उसको हल कर दे। मेरे नौजवान साथियों, तो दूसरा काम अल्लाह ने जो कहा, एहसान करना, दान खैरात करना, माया करना। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा। खास करके आपका जो कुटुंब खेस रिश्तेदार है, रिलेटिव है, आपका अपना भाई है, चचा है, फूफा है, खालू है, मामू है, फूफी है, दादी है, इन लोगों का ख्याल रखो। आज अगर अल्लाह ने हमको माल दिया तो हम मस्जिद में देता है, मदरसे में भी देता है, किंतु हमारा भाई बीमार पड़ा हुआ है, हमको उसकी फिक्र नहीं। भाई बीमार है, माँ बीमार है, बहन बीमार है, दवा इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, औषध लेने के लिए उसके पास टका पैसा नहीं है। हम अपने माँ का, भाई का, बहन का ख्याल नहीं रखते और दुनिया भर की मस्जिद और मदरसे का ख्याल रखते हैं। नौजवान साथियों, ये तरीका सही नहीं है। पहले अपना कुटुंब खेश, अपना रिश्तेदार, जो आपका अपना रिलेटिव है, उसका अगर कोई दुख है, परेशानी है, उसको दूर करो और उसके बाद फिर मस्जिद मदरसे का जाकर ख्याल करो। व ईताइ दिल कुर्बा, 3 काम हुआ और 3 काम से अल्लाह ने रोका। वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य। फहशा इसके माने है बेहयाई। बेहयाई का मतलब जैसे माँ बहन है वो पर्दा नहीं करती है, बेपर्दा घूमती है, आगे सब बुर्का लगाती थी, अब आहिस्ते आहिस्ते फैशन पर आ गई, लिबास ड्रेस छोटा होता गया, माथा पर उड़ना नहीं, दुपट्टा नहीं, और बाजार में घूम रही है। बेहयाई में आता है कि कोई नौजुवक, कोई नौजवान लड़की अगर गुजर रही है, किसी का मैं अगर स्कूल कॉलेज जा रही है, तो हम रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और उसको गौर से, ध्यान से देखते हैं कि ये किसकी लड़की है, किसकी में है, और उसके बाद उसका नंबर लेते हैं, उसको फोन करते हैं और उसके साथ कांटेक्ट करते 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 वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये भी बेहयाई है, अल्लाह ने इससे रोका। वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, और अल्लाह बुराई से, बुरे काम से, गलत काम से रोकता है। गलत काम चोरी करना, जुआ खेलना, मौत खाना, भांग, दारू, गंजा, ये सब चीज, टैबलेट, फिल्म देखना, गान सुनना, ये सब बेहयाई में, बुराई में आता है। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में सबको इससे मना किया। और नंबर 3 जिस काम से मना किया, वल बग़य। बग़य का मतलब है जुल्म। ए मुसलमानों, तुमरा कोनो दिन जुल्म करियो, तुमरा कोनो दिन जुल्म करियो ना। कारण क्या है? एक हदीस में आया कि दुईटा पाप, ध्यान से सुनना, ये आखिरी बात है, दुईटा पाप, 2 गुनाह ऐसा है जिसकी सजा और पेनिशमेंट मरने के बाद तो मिलेगा मिलेगा, किंतु एक दुईटा पापेर सजा अल्लाह ताला इस दुनिया में भी देता है। दुनिया में भी इस 2 पाप की सजा मिल जाती है। वो 2 पाप क्या है? नंबर 1 जुल्म करना, अत्याचार करना। कोई कमजोर आदमी है,
خواہ اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی دوش نہیں، اور جا کر اس کو 4 تھپڑ لگا دیا۔ کوئی بوڑھا آدمی ویستو راستے سے جا رہا تھا اور جا کر اس کا لاٹھی چھین لیا اور بھاگ گیا، اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچ لیا، دھکا دے کر گرا دیا۔ باڑی میں ماں ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بوڑھا باپ ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے۔ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے لوگ تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ تم جو دی بےمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بڑے بےمان کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا اور وہ تمہارے ساتھ بےمانی کرے گا۔ ایک گاؤں کا بوڑھا آدمی، گاؤں میں بوڑھا مانوس، اس کے باڑی میں دودھ ہوتا تھا، اس کی وائف بٹر بناتی تھی، مکھن، اور اس نے ایک دن 10 گلہ، 1 کلو کا 1 گلہ مکھن 10 گلہ لیا اور ٹاؤن میں بیچنے کے لیے گیا۔ جا کر بیچا، جو مہاجن سیٹ تھا اس نے کہا 1 گلہ کتنا ہے؟ 1 کلو ہے۔ 10 گلہ 10 کلو، 10 کلو کا پیسہ دے دیا، کچھ سامان لیا، کچھ کیش لیا، اور بوڑھا آدمی اپنے گھر میں آ گیا۔ اس سیٹ نے، اس دکاندار نے بوڑھا آدمی کے جانے کے بعد جب بٹر کو ویٹ کیا، وزن کیا، تو دیکھا کہ 1 کلو نہیں ہے، 1 گلہ 900 گرام ہے، 1 کلو نہیں ہے۔ پیسہ دیا تھا 10 کلو کا اور مال ملا 9 کلو۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ دوبارہ جب یہ بوڑھا آئے گا تو میں اس کی پٹائی کروں گا، ماروں گا۔ سپتہ 10 دن کے بعد پھر وہ بوڑھا آدمی لاٹھی کا سہارا لے کر اور وہی بٹر لے کر اس آدمی کے پاس بیچنے کے لیے گیا۔ جب دکاندار نے اس بوڑھے کو دیکھا تو پال مار کر دکان سے نیچے آیا، آ کر کالر اس کا پکڑا اور 3 سوڑ لگایا۔ تم بوڑھا آدمی ہو کر بےمانی کرتا ہے، تمہارے ماتھا میں نماز کا نشان ہے، داغ ہے، اور تم میرے ساتھ بےمانی کرتا ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ اس بوڑھا نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا کیوں اسے কইলো যে আজকে তাকি 10 দিন আগে তুমি 10টা গুল্লা দিছো আর আমারে কইছো যে একটা গুল্লা 1 কেজি, তোমার যাওয়ার পরে আমি গুল্লা ওয়েট করছি 1 কেজি নাই 900 গ্রাম, আমি টাকা দিছি 10 কেজির আর মাল পাইছি 9 কেজি। मेरे नौजुवक भाइयों, मुरब्बियों, आप लोग अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो उस बूढ़ा ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, ये सुनो। उस बूढ़ा ने कहा कि बेटा हमारा घर में दूध होता है, मेरी वाइफ दूध से बटर बनाती है, আমার বাড়িতে একটা तराजू আছে किंतु लोहा ना, बाट ना, 1 केजी, आधा केजी, 200 ग्राम ये नहीं है, तराजू है, वेट करने के लिए लोहा नहीं है। आज के तक 20 दिन आगे, 2 सप्ताह आगे मैं तुम्हारी दुकान से 1 केजी चीनी लेकर गया, अभी 1 केजी चीनी लोइया गेছিলাম और मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि देखो ये जो पॉलिथीन है, कैरी बैग है, इसमें 1 केजी चीनी है, तुमको बटर अगर वजन करना होगा, नापना होगा तो तराजू के 1 पल्ला में ये चीनी रख देना और 1 पल्ला में बटर रखना, समान समान हो जाएगा तो तुम्हारा माल 1 केजी हो जाएगा। मेरे नौजवानों, अगर आप लोगों ने समझा तो यकीनन आपको ये मालूम हो गया कि उस बूढ़ा ने बेईमानी तो बाद में किया, आगे उस महाजन ने बेईमानी किया था, उसने 1 केजी चीनी दिया था लेकिन माल 1 किलो नहीं था, माल 900 ग्राम था। वो बेईमानी किया, ऑटोमेटिक उसके साथ भी बेईमानी हुआ। मुसलमानों, इस बात को अपने जहन में, दिमाग में रखो, कमा तदीनु तुदान, जैसा तुम करोगे अगला तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। आज अगर तुम नौजवान हो और अपने माँ बाप पर जुल्म अत्याचार करते हो, खुदा की कसम कहता हूं कल आपका बच्चा, आपका लड़का आपके ऊपर और आपकी वाइफ पर जुल्म अत्याचार करेगा। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम दारुल देवबंद प्रिंसिपल फरमाए बेटी उत्तर नौगांव, वहां उन्होंने एक घटना सुनाया कि एक नौजुवक का बाप के साथ कुछ कजिया लग गया, झगड़ा लगा। नौजुवक को बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ में डंडा लिया, लाठी लिया और अपना बूढ़ा बाप को मारा, खूब मारा, मार के घर से निकाल कर रोड तक लाया, रास्ते तक लाया, धक्का दिया।
এখন পর্যন্ত বাবা কিচ্ছু কইছে না। जब रोड पर मार मार कर लाया तो बाबा ने कहा कि ओ अमार से ले, अब छोड़ दो, बहुत हो गया, और अमार मारियो ना, अब मुझको छोड़ दो। तो उसके लड़के ने कहा कि अब्बा जान आगे एक उकट आपने कोई लाना, अगर पहले आप कहते तो हम पहले नहीं मारते, छोड़ देते। मेरे भाइयों, उस बूढ़ा बाप ने कहा कि असल में बात यह है कि जब मैं नौजवान था, मेरा रक्तो गरम था, और तुम्हारा दादा मेरा अब्बा बूढ़ा था, तो मैंने अपने बाप के साथ झगड़ा किया था, और मैंने अपने बाप को डंडा लेकर मारा था, और मार मार के घर से निकाल कर रास्ता तक लाया था। ऐ मेरे बेटे, तुमने अपने दादा का बदला मुझसे ले लिया। मैंने अपने बाप पर जुल्म किया, तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया, और याद रखो तुम्हारा लड़का तुम पर जुल्म करेगा, तुम्हारा लड़का तुमको मारेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जुल्म करोगे उसकी सजा इस दुनिया में मिलेगी। ये एकदम अल्लाह का बनाया हुआ कानून। तो 6 बात बयान की गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो जलसा हुआ, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट में बात ख़त्म कर दूंगा, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, चले जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह अभी 1 बजने से भी ज़्यादा हो गया और पिंडाल एकदम भरा हुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। आज के प्रोग्रामটা আল্লাহ কবুল করতো, আর প্রোগ্রামের যে উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए।